اس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، اور جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، اور جس کے نام سے شاہ سلیمہ نے گدائی کی۔ ہاں ہاں دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے، جس کی زیارت کے لبے عیسیٰ پہ آئے واز، جس کی شان و عظمت کے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب میرے سرکار کا نور حضرت آدم علیہ السلام کے پشت پاک میں آیا، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتے سجدہ کرنے لگ گئے۔ آدم نے عرض کیا، مولا آخر معاملہ کیا ہے، یہ فرشتے ہمیں سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ رب نے مصطفیٰ کے نور کو آدم کی پیشانی میں سجا دیا۔ جب وہ نور حضرت آدم کی پیشانی میں جلوگر ہوا، فرشتے آگے آ گئے۔ آدم نے عریضہ پیش کیا، مولا یہ فرشتے آگے کیوں آ گئے؟ رب نے فرمایا، آدم یہ تیری تعظیم میں نہیں بلکہ میرے محبوب کے نور کی تعظیم میں کھڑے ہیں۔ حضرت آدم نے عریضہ پیش کر دیا، مولا اپنے محبوب کے نور کو ایسی جگہ منتقل کر دے تاکہ آدم بھی مصطفیٰ کے نور کو دیکھ لے۔ رب نے مصطفیٰ کے نور کو آدم کے انگوٹھوں کے ناخنوں میں رکھ دیا۔ جیسے ہی نور محمدی کو حضرت آدم نے دیکھا، برداشت نہ کر پائے، حضرت آدم نے فوراً اپنے انگوٹھوں کو اپنے آنکھوں سے مل لیا۔ آج جب مؤذن مسجد کے مائک میں کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، آج مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا اگر کوئی انگوٹھوں کو چومتا ہے، یہ شرک و بدعت نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم مصطفیٰ کے نور کو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب مصطفیٰ کا نام آتا ہے تو اپنے باپ حضرت آدم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے انگوٹھوں کو چوم لیا کرتے ہیں۔ جب یہی نور اور پشتوں میں منتقل ہوتا گیا، وہ پشتیں بڑی شان والی ہوتی گئیں۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، مسجد نبوی میں صحابہ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع، نبی نے ارشاد فرمایا، او میرے صحابہ سنو، جن جن پشتوں میں میرا نور گیا وہ پشتیں شان والی ہوتی گئیں، جن جن رحموں میں میرا نور گیا وہ رحم شان والے ہوتے گئے، اور ایسے شان والے ہوئے، ایسے شان والے ہوئے۔ جب میرا نور پشت آدم میں گیا، فرشتے سجدہ کرنے لگ گئے۔ جب میرا نور پشت یوسف میں گیا تو یوسف کو رب نے حسین و محجبین بنا کر کے دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ جب میرا نور ابراہیم خلیل اللہ پہ گیا تو آگ جلا نہ سکی۔ جب میرا نور پشت اسماعیل میں گیا تو چھری کاٹ نہ سکی۔ جب یہی نور منتقل ہوتا چلا گیا، اللہ اکبر، وہ رحم شان والے ہوتے گئے، وہ پشتیں شان والی ہوتی گئیں۔ پھر یہ نور پشت عبداللہ میں گیا، اللہ اکبر، جب پشت عبداللہ میں مصطفیٰ کے نور کو منتقل کیا گیا، آقا کے نور کو جب پشت عبداللہ میں منتقل کیا گیا، اس وقت کے یہودیوں نے وہ اپنی کتاب میں دیکھ رہے تھے کہ اب ہمارے پاس سے اللہ اکبر نبوت چلی جانے والی ہے، اب قوم بنی اسرائیل سے نبوت چلی جائے گی، اب اللہ اکبر یہ نبوت حضرت ابراہیم کے قبیلے میں چلی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری پیغمبر دنیا کے اندر جلوہ گر ہوگا، وہ اللہ اکبر اپنی نبوت کا اعلان کرے گا، دنیا کے اندر اس کو ماننے والے لوگ کثیر تعداد میں ہو جائیں گے،
मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, जब उन्होंने उनके उलमाओं ने अपनी किताबों में देखा कि आखिरी पैगंबर का वालिद दुनिया के अंदर जलवगर हो गया है, उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा किया। लोगों को इकट्ठा करने के बाद जरा देखे तो सही, अल्लाह अकबर, लोगों को इकट्ठा किया। लोगों से कहा था, ओ लोगों सुनो सुनो, अब आखिरी पैगंबर का वालिद दुनिया के अंदर जलवगर हो गया है, अगर उसको कत्ल न किया गया तो याद रखो अल्लाह अकबर, आखिरी पैगंबर भी दुनिया के अंदर जलवगर हो जाएगा। है कोई तुम में से जो आखिरी पैगंबर के वालिद के सर को काट करके लाए? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक शख्स खड़ा हो गया, कहा, ओ लोगों बताओ, अगर मैं उनके वालिद के सर को काट करके लाऊं मुझे कितना इनाम और इकराम दिया जाएगा? लोगों ने कहा था, तुझे इतना इनाम और इकराम से नवाज दिया जाएगा कि तेरी कई पुश्तों का भला हो जाएगा। उसने कहा, ठीक है, मैं आखिरी पैगंबर के वालिद के सर को काट करके लाऊंगा। अल्लाह अकबर, वो शख्स जैसे ही शहर मक्का में आया, आने के बाद उसने बच्चों को खेलते हुए देखा। देखने के बाद एक बच्चा ऐसा नजर आया जो बड़ा हसीनो जमील बच्चा था, जो बड़ा खूबसूरत बच्चा था। अल्लाह अकबर, जिसकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी अपनी शान और शौकत के साथ जलवगर था। अल्लाह अकबर, उस नौजवान ने जैसे ही उस बच्चे को देखा, सबसे होशियार और सबसे समझदार बच्चा वही नजर आया। अल्लाह अकबर, उसने हजरत अब्दुल्लाह को बुलाया था। बुलाने के बाद कहा था, ऐ बच्चे, तेरा चेहरा मालूम हो रहा है कि तू वफादार बच्चा है, तू हमारे राज को किसी से ना कहेगा। अल्लाह अकबर, ऐ बच्चे बता तो सही, अल्लाह अकबर, तुम में से अब्दुल्लाह कौन है? हजरत अब्दुल्लाह ने जवाब दिया है कि अब्दुल्लाह का क्या करोगे? कहा, ऐ बच्चे, ये राज की बात है, मैं तुझे ये बात नहीं बता सकता हूँ। अल्लाह अकबर, बच्चे ने इसरार, हजरत अब्दुल्लाह ने इसरार किया। उसने कहा, नहीं, मैं ये बात नहीं बता सकता। अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्लाह घर पे गए। जाने के बाद खजूरों को लेकर के आए, पानी को लेकर के लाए। अल्लाह अकबर, जैसे ही पानी अल्लाह अकबर आने वाले नौजवान को दिया है, कहा था, ये खजूरें खा लो, ये पानी पी लो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम मुसाफिर हो, दूर से सफर करके आए हो। अल्लाह अकबर, जैसे ही अपने कातिल को हजरत अब्दुल्लाह ने पानी और खजूर खिलाई है, अल्लाह अकबर, फिर उस नौजवान ने कहा था, ऐ बच्चे, अब बता अब्दुल्लाह कहाँ है? अब्दुल्लाह मुझे कहाँ मिलेगा? हजरत अब्दुल्लाह ने कहा, ऐ आने वाले मुसाफिर, बता तेरा क्या काम है अब्दुल्लाह से? वो तो बच्चा है, उसका क्या करेगा? आने वाले नौजवान ने कहा, ऐ बच्चे सुन ले, अगर तू इसरार कर रहा है, मैं तुझे राज की बात बताना चाहता हूँ, राज की बात बता रहा हूँ। मुझे मालूम है कि तू मेरे राज को कहीं फाश नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्लाह ने वादा कर लिया। उस नौजवान ने कहा था, ऐ बच्चे सुनो सुनो, हमारे कबीले ने ये ऐलान किया है कि अल्लाह अकबर, आखिरी पैगंबर का वालिद दुनिया के अंदर जलवगर हो चुका है। आखिरी पैगंबर के वालिद का नाम अब्दुल्लाह है। जो अब्दुल्लाह के सर को काट करके लाएगा, उसे इतना इनाम और इकराम दे दिया जाएगा, उसकी आने वाली पुश्तों का भला हो जाएगा। अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्लाह ने उस नौजवान से कहा, ऐ नौजवान सुन ले, अल्लाह अकबर क्या करेगा उस बच्चे का सर ले जा करके? अब्दुल्लाह तो बच्चा है, तुम्हें मालूम होना चाहिए, जब तुम किसी बच्चे के सर को लेकर के जाओगे, उसके वालिद अलग रोएंगे, उसकी माँ अलग तड़पेगी, उसके अजीजों अकरबा भाई बहन अलग तड़पेंगे। क्या करोगे उस बच्चे का सर ले जा करके? अल्लाह अकबर, नौजवान ने कहा था, मैं उसके भाई बहन को देखूं या अपने आने वाली पुश्तों को देखूं? अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्लाह ने कहा, ठीक है, अगर तू अपनी आने वाली पुश्तों को अल्लाह अकबर मालदार होना देखना चाहता है तो ले, मेरा सर ले जा। अल्लाह अकबर, इसलिए कि कोई और अब्दुल्लाह नहीं, बल्कि जो अब्दुल्लाह है वो तेरी नजरों के सामने खड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर, जैसे ही इतनी बात कही, उस आने वाले नौजवान ने कहा था, ऐ बेटे, तुझे मैं कैसे कत्ल कर सकता हूँ? अल्लाह अकबर, तूने तो मुझे पानी भी पिलाया है, तूने तो मुझे खजूरें भी खिलाई है, मैं तुझे कैसे कत्ल कर सकता हूँ? अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्लाह ने कहा था, मैं ही अब्दुल्लाह हूँ, मुझे ही मेरा सर लेकर के चला जा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उसने अपनी तलवार को हजरत अब्दुल्लाह के कदमों पे रखा है और कहा था, ऐ आखिरी पैगंबर के वालिद, मैं समझ गया कि जब तेरे इखलाक का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत के इखलाक का आलम कैसा होगा। अल्लाह
अल्लाह अकबर फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हाँ हाँ यही अब्दुल्ला है, इनकी उम्र परवान चढ़ रही है। अल्लाह अकबर जरा गौर करे, जब हजरत अब्दुल्ला अपनी जवानी की दहलीज पर पहुंच गए, हजरत अब्दुल्ला जब जवान हो गए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को फिक्र लगी कि मैं अपने बेटे अब्दुल्ला का कहीं निकाह करूं। अल्लाह अकबर जिस तरीके से हजरत यूसुफ को अल्लाह अकबर मिस्र का हसीनो जमील कहा जाता था, दुनिया का खूबसूरत तरीन इंसान कहा जाता था, वैसे ही अब्दुल्ला को मक्के का यूसुफ कहा जाता था। ये इतने हसीनो जमील थे, इतने खूबसूरत थे। अल्लाह अकबर जब ये नौजवान हो गए, अल्लाह अकबर मक्के की औरतें हजरत अब्दुल्ला को ये कह रही थी, ऐ अब्दुल्ला मुझसे निकाह कर लो, मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि जिनके घर के अंदर अगर बड़े मौजूद हुआ करते हैं तो बच्चे फैसला नहीं किया करते हैं। हाँ हाँ यही अब्दुल्ला है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोए हैं, सोने के बाद अल्लाह अकबर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ये फिक्र लायक हो गई कि मेरा अब्दुल्ला जिस तरीके से हुस्न जमाल का मुजस्समा है, ज़ोहद व तक़वा का पैकर है, वैसे ही इसके लिए किसी खातून को तलाश किया जाए, वैसे ही इसके लिए किसी औरत को तलाश किया जाए। हजरत अब्दुल्ला सोए हैं, अल्लाह अकबर सोने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोए हैं, सोने के बाद आपके ख्वाब में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जलवगर हो जाते हैं। जब बेटे शान वाले हुआ करते हैं तो रिश्ते भी शान वाले करवाया करते हैं। अल्लाह अकबर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ख्वाब में जलवगर हुए हैं और कहा था, ऐ अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें अपने बेटे अब्दुल्लाह की फिक्र है। हाँ मुझे अपने बेटे अब्दुल्लाह की फिक्र है। सुनो सुनो, तुम मदीना के अंदर चले जाओ, वहां पर अल्लाह अकबर आमना बिन्त वहब है, हजरत वहब की बेटी आमना है, तुम जाओ वहां आमना से अपने बेटे अब्दुल्लाह का निकाह कर दो। अल्लाह अकबर इधर ये मसला हो गया। अब उधर जरा गौर करें, हजरत आमना की सीरत को मुलाहजा फरमाए, हजरत आमना की जिंदगी को प्यारे मुलाहजा फरमाए। अल्लाह अकबर हजरत आमना वो है जब आपके बचपन का जमाना है, अल्लाह अकबर जब आपके बचपन का जमाना है, अल्लाह अकबर हजरत सैयदा आमना अपने सहेलियों के साथ खेल रही है। हजरत आमना की जिंदगी पर गौर करें। अल्लाह अकबर उस वक्त जो काहिन होते थे, उस वक्त अल्लाह अकबर जो नजूबी होते थे, वो हाथों की लकीरों को देख के बता दिया करते थे कि अल्लाह अकबर इसकी जिंदगी में क्या होने वाला है। एक सौदा नामी खातून जब मदीना के अंदर आई, आने के बाद तमाम खातूने अपना अपना हाथ दिखा रही है और अल्लाह अकबर अपनी तकदीर का पूछ रही है। यही सौदा है। अल्लाह अकबर ये सौदा बैठी हुई है। हजरत सैयदा आमना की सहेलियों ने कहा था, ऐ आमना सुन सुन, तू क्यों अल्लाह अकबर बैठी हुई है, तू भी अपने हाथ को दिखा ले। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत सैयदा आमना ने जैसे ही अपने हाथ को दिखाया है, दिखाने के बाद सौदा ने हजरत सैयदा आमना के हाथ को देखा है। कभी हाथ की लकीरों को देख रही है, कभी आसमान के सितारों को देख रही है, कभी सैयदा आमना के चेहरे को देख रही है। औरतों ने कहा था, ऐ सौदा, ऐ काहिन सुन सुन, तूने और बच्चियों के हाथों को देखा तो तूने बता दिया कि इसकी जिंदगी में क्या होने वाला है। आखिर आमना की जिंदगी में ऐसा क्या है अल्लाह अकबर तू बताना चाह रही है, लेकिन तेरी जुबान से नहीं निकल रहा है। तो सौदा ने कहा था, ऐ मदीने की खातूनों सुनो सुनो, आमना वो है अल्लाह अकबर इसकी हाथ की लकीरें बता रही है, या तो ये खुद नबी क्या होगी या किसी नबी की अल्लाह अकबर इमाम, या अल्लाह अकबर ये नबी की माँ बनने वाली है। अल्लाह अकबर जैसे ही सैयदा आमना ने अपने हाथ की लकीरों को दिखाया, अपने घर के अंदर गई है, जाने के बाद अल्लाह अकबर अपने वालिद को बताया है। अब यही सैयदा आमना है। अल्लाह अकबर हजरत वहाब को ये मालूम होने लगा, मेरी बेटी कोई आम बेटी नहीं है, बल्कि मेरी बेटी वो है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह अकबर शरीयत के साये में गुजारी है। मेरी बेटी वो है जो ज़ुहद व तक़वा का मुजस्समा है, हुस्न व जमाल का पैकर है। यही सैयदा आमना है। जब जवान हो रही है, हजरत वहाब को भी फिक्र लग गई है कि मेरी बेटी का निकाह किससे किया जाए। हजरत वहाब के ख्वाब में भी हजरत इब्राहिम आए
हैं और कहा था, अरे बाप सुनो सुनो, मक्के के अंदर एक बड़ा हसीनो जमील नौजवान है जिसका नाम अब्दुल्ला है, जो ज़ोहद तकवा का पैकर है। अल्लाह अकबर, वहां अपनी बेटी का निकाह कर दिया जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत वहाब को भी ख्वाब में आ गया। जब सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत सैयदा आमना के घर पे गए हैं। जाने के बाद जरा अंदाज मुलाहजा फरमाए हजरत अब्दुल मुत्तलिब का। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? अल्लाह अकबर, ये खाना काबा के मुतवल्ली है, मक्के के सरदार है। लेकिन अल्लाह अकबर, जब रिश्ता बेटी का लेने के लिए जा रहे हैं तो इनका अंदाज मुलाहजा फरमाए। अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए हैं। जाने के बाद अपनी झोली को फैलाया है। फैलाने के बाद अल्लाह अकबर फिर कहा था, ऐ बाप सुनो, मैं तुम्हारे दरवाजे पर कोई चीज लेने के लिए नहीं आया, बल्कि आज एक साइल बन के आया हूँ। वो सवाल ये है कि आप अपनी बेटी का निकाह हमारे बेटे के साथ कर दे। अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्ला और हजरत सैयदा आमना का जब निकाह हो गया, निकाह होने के बाद अल्लाह अकबर, जब मेरे सरकार का नूर पुश्त अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर के हजरत सैयदा आमना के बतने पाक में जलवगर हुआ है, तो 12 रबीउल नूर को अल्लाह अकबर दुनिया को ये खबर दे दी गई, ऐ दुनिया के लोगों सुनो सुनो, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अंधेरों को खत्म करने वाला, इल्म को फैलाने वाला अब दुनिया के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जलवगर हो गया है। जब इसी पर नजर हमारे इमाम की पड़ी तो मेरा इमाम कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अहमद रजा के इल्म में इतनी ताकत नहीं कि तेरी तारीफ और तौसीफ को बयान कर सकूं। या रसूल अल्लाह, अहमद रजा सिर्फ इतना ही कह रहा है, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस वाए बेतनाई से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर करें, अल्लाह अकबर, जब ये रिश्ते हो रहे हैं, अगर सरदार कुरैश, अगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब चाहते अल्लाह अकबर तो पैसे का सवाल कर देते, जहेज का सवाल कर देते, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब की सोच पे कुर्बान जाओ, आपने सवाल नहीं किया। अगर देखा तो सिर्फ एक लड़की की सीरत को देखा, उसके ज़ोहद तकवा को देखा। ओ मेरे अजीजों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर जब अपने बेटों का निकाह करे तो ये मत देखे कि बेटी, अल्लाह अकबर, ये मत देखे कि बेटी ने जिंदगी अल्लाह अकबर दुनिया के मामले में गुजारी है। ये मत देखे कि अल्लाह अकबर उसने अपनी जिंदगी ऐसे गुजारी है जैसे आमतौर की लड़कियां गुजारती है। ये सवाल न करे, न जहेज का सवाल करे, न पैसे का मुतालिबा करे। जब जाए तो अल्लाह अकबर बेटी के वालिद से कहे, जरा मुझे इतना तो बताओ, आपकी बेटी कुरान पढ़ती है या नहीं पढ़ती है? आपकी बेटी रोजा रखती है या नहीं रखती है? आपकी बेटी ने जिंदगी शरीयत मुतहरा के साये में गुजारी है या नहीं गुजारी है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर ये पूछेंगे तो याद रखो मेरे अजीजों, जब उस बेटी को घर के अंदर लाओगे तो याद रखो, घर के अंदर बाबेला और तमाशा नहीं होगा। जब किसी की बेटी आएगी और वो बेटी जिसने जिंदगी शरीयत मुतहरा के साये में गुजारी है, जिसने जिंदगी मुस्तफा के नक्शे कदम पे गुजारी है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह अकबर जो कनीज़ फातिमा बन करके जी है, तो याद रखो मेरे अजीजों, जब वो तेरे घर पे आएगी, इधर उसका कदम तेरे घर पे होगा, उधर रब की रहमतें तेरे घर पे बरसना शुरू हो जाए।